Hello dear students, this is lecture number 15. So in today's lecture we want to discuss the molarity equation for mixture of solutions of same solute. Meaning is how will you calculate the molarity of a mixture of solution of same solute. So last class we discussed numericals based on molarity, after that molarity equation for dilution. तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर Today's is lecture number 15. Lecture number 15 15. तो लेक्चर नंबर 15 टॉपिक है मोलरिटी इक्वेशन. Molarity equation for mixture of two or more solutions of same solute. The solute same है तो what will be the molarity equation for this? Now come to the equation. Molarity equation for mixture of two or more solution of same solute. The equation is ऐसे लिखेंगे. Let us come to the explanation part first. The explanation part मानो कि ऐसा है two solution, दोनों में solute same है. This is solution 1. यहाँ solute का number of mole n1 है. This is another solution 2. So here number of moles of solute n2 है. दोनों में मानो कि ऐसा है, दोनों में H2SO4 की solution है या और HCl, ये भी HCl solution, HCl solution. So now if you mix these two, then you will get resultant solution. ये resultant solution. So in this resultant solution, number of moles Nr. So now Nr equal to N1 plus N2. So this is the equation. The total number of moles of solute in the final solution is equal to number of moles of solute in the solution 1 plus number of moles of solute in the solution 2. So now based on this, the equation will be, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हमने पहले डिस्कस किया मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. तो यहाँ हम लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MRVR, where R represent resultant. MR molarity of resulting solution and VR equal to V1 plus V2, meaning is volume of the resulting solution or final solution. तो now इस इक्वेशन के ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल. याद रखो बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल, this equation is applicable only for mixture of those solutions which contain same solute. अगर solute different है then this equation is not applicable. तो याद रखो. So now come to the numerical one by one. So let us start from the first very simple numerical. Question number 1. 100 ml of 0.1 molar HCl solution is mixed with 100 ml of 0.2 molar another HCl solution. Full stop. Calculate the molarity of the final solution. Calculate the molarity of the final solution. So now come to the solution of this question. See here question में क्या बोला है,
द HCl का दो सॉल्यूशन है, दोनों का 100 ml 100 ml है, बट मोलरिटी डिफरेंट है। एक का मोलरिटी है 0.1, अनदर की मोलरिटी है 0.2. तो if you mix these two solution, तो एक solution, final solution you will get. So what will be the molarity of that solution and how will you calculate? Formula for solving this numerical already method you have got. So now application. तो solution में see here solution. तो हम लिखते हैं M1 initial molarity 0.1 molar, B1 100 ml, M2 equal to 0.2 molar, तो B2 equal to 100 ml, वॉल्यूम है। तो रिमेनिंग पार्ट के लिए गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। तो VR इक्वल टू V1 प्लस V2 200 ml, MR इक्वल टू निकलना है क्वेश्चन मार्क। तो नाउ सी द इक्वेशन, हम लिखेंगे MR इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो नाउ पुट द वैल्यूज। M1 कितना है 0.1, V1 100 है प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू V1 V2 अगेन 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 तो 200। तो इक्वल टू ये होगा 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.15 मोलर। तो दिस इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया है बेस्ड ऑन मोलरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन के लिए, सॉरी फॉर मिक्सर के लिए। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो नाउ कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये 100 ml ऑफ 9.8% W/W H2SO4 solution within bracket density given 1.2 gram per ml is mixed with 100 ml of 4.9% W/W another H2SO4 solution within bracket density equal to 1.1 gram per ml. Full stop. Calculate the molarity of the final solution. Molarity of the final solution. तो इस पर देखो 200 H2SO4 के दो सॉल्यूशन हैं, वॉल्यूम दोनों के दिया हुआ है बट मोलारिटी नहीं दिया है। तो मोलारिटी के जगह में डेंसिटी एंड मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन? टू कम टू द सॉल्यूशन, तो ये जो W/W परसेंटेज एंड डेंसिटी दिया हुआ है, यूजिंग दिस वन मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी फॉर इन प्रीवियस लेक्चर में यू हैव गॉट दैट थिंग। तो नाउ कम टू दिस वन। तो हम पहले लिखते हैं M1 इक्वल टू X इंटू D इंटू 10 बाई MB। रिमाइंड करो दिस फॉर्मूला ऑलरेडी यू गॉट। तो X की जगह में हम पुट करेंगे 9.8 इंटू डेंसिटी 1.2 इनिशियल पहला सॉल्यूशन जो ये है, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98। तो ये दोनों कैंसिल, तो इक्वल टू 1.2 मोलर। इसका V1 दिया है 100 ml, V1 is given 100 ml. So now अभी M2 कैलकुलेट करो, अप्लाई द इक्वेशन। तो नाउ M2 इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन X इंटू D इंटू 10 बाई MB अगेन।
x की जगह में 4.9 इंटू डेंसिटी 1.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98। ये 10 और इसको लेकर 2 हो गया। तो जब 2 हो गया इसको हम डिवाइड करते हैं 0.55 मोलर, तो ये M2 मिल गया 0.55 मोलर। तो now V2 also given 100 ml. So अभी VR resulting volume VR equal to V1 plus V2 equal to 200 ml. MR equal to question mark. तो resulting molarity निकलना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो अभी। MR equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. तो now put this value. तो M1 का मोलरिटी 1.2 मिला है, वॉल्यूम 100 प्लस M2 0.55 इंटू अगेन दिस इज ऑल्सो 100 डिवाइडेड बाई दोनों मिला के 200 हो जाएगा। तो 200 जब हो गया तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.6 मोलर प्लस यहाँ से कैलकुलेट करें 0 0 कैंसिल, तो 2 से डिवाइड करते हैं 0.275। This is the molarity of final solution. So now if you calculate this, तो 5 7 तो दोनों ऐड करो 6.8 तो 0.8 हो जाएगा। This is the molarity of final solution. तो ये है, this is the second numerical based on molarity equation. तो now come to the third equation, numericals. Numericals number 3. तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, यू आर गिवन 500 ml each of, the question is, question number 3, you are given 500 ml of each of 2 molar and 5 molar HCl solutions. So by using only these 2 solutions, what maximum volume of 3 molar HCl solution can be prepared? So actually option of this, the options are also given. So now come to the option. The first option given 250 ml, second option given 500 ml, third option given 750 ml, fourth option given 1000 ml. So out of this, which option is correct? How will you verify this one? So now come to the solution. Come to the solution of this question. The solution, see here, solution. तो solution में केस 1 केस 2 बोल के हम करते हैं। केस 1, लेट वॉल्यूम ऑफ 5 molar HCl solution used equal to, मीनिंग इज 500 ml पूरा यूज किया है हमने, एंड वॉल्यूम ऑफ 2 molar HCl solution used equal to x ml। तो अगेन देखो जो 5 molar HCl solution है उसका हम पूरा यूज किया है।
और 2 मोलर जो HCl सॉल्यूशन है, मानो कि x ml हमने यूज किया है। नाउ मिक्सर के लिए इक्वेशन, तो मोलरिटी ये जो पार्ट है CN M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MrVr। तो M1 मोलरिटी 2 मानो, इसका हमने x यूज किया है, प्लस इसका मोलरिटी 5 है, वॉल्यूम 500 हमने यूज किया है, इक्वल टू Mr 3 मोलर बोला है, तो वॉल्यूम कितना होगा x प्लस 500, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, यहाँ 2x प्लस 2500 इक्वल टू 3x प्लस 1500, तो if you solve this one, तो x इक्वल टू विल गेट कितना आ रहा है 1000 ml। तो नाउ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू x प्लस 500 इक्वल टू 1500 ml। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, अगर है भी तो इसको हम क्या बोलेंगे, which is not possible। तो देखो ऑप्शन में ये नहीं है, अगर सपोज ऑप्शन में है तो फिर भी हम बोलेंगे ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि दो सॉल्यूशन दिया है, दोनों का 500 ml 500 ml है, तो यू हैव टू यूज ओनली दिस टू सॉल्यूशन। तो अगर दोनों सॉल्यूशन का अगर कंप्लीट पूरा भी यूज करेंगे तो मैक्सिमम 1000 ml सॉल्यूशन यू कैन प्रिपेयर। 1000 ml से ज्यादा तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैक्सिमम 1000 ml यू कैन प्रिपेयर, बट हियर गिवन इट इज रिजल्ट कम आउट देखो 1500, तो व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो नाउ come to the case 2, second method, alternative method, case 2। तो in case of case 2 is were let volume of 5 molar HCl solution used equal to x ml and volume of 2 molar HCl solution used equal to 500 ml। तो इनिशियल केस का उल्टा हमने एज्यूम किया है। जब उल्टा एज्यूम किया है, so now apply the equation now। तो ये 2 into 500 plus x into 5 equal to final molarity given 3 into x plus 500। तो now if you solve this equation, यहाँ से हो जाएगा 1000 plus 5x equal to 3x plus 1500। तो यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट पेज 2x इक्वल टू, नाउ 2x इक्वल टू, तो when लेफ्ट हैंड साइड 1000 है, राइट हैंड साइड 1500 है, तो सब्सट्रैक्ट करो तो कितना मिल जाएगा 500 होगा। तो 2x इक्वल टू 500, तो यहाँ से x इक्वल टू 250 ml। तो जब x इक्वल टू 250 ml है, तो नाउ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू x प्लस 500 इक्वल टू 750 ml। So this is the answer। So we now come to the option। हमने जो ऑप्शन लिखा है, तो which option is correct? तो now C ऑप्शन में टिक मार्क करो, the option 3 is correct। Third option is the correct answer। So now come to the overall conclusion। अगर ऐसा क्वेश्चन इफ आस्क्स, लिसन अगेन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्स, देन सिंपल सा मेथड क्या है, लिसन अगेन। देन सिंपल सा मेथड यही है, तो बेस्ड ऑन दिस, जिस सॉल्यूशन का मोलारिटी कम है तो उसका पूरा यूज करो, और जिसका मोलारिटी ज्यादा है तो उसका x ml मानो फॉर्मूला अप्लाई करो। 2 बार कैलकुलेशन नहीं होगा, जैसे हमने केस 1 केस 2 किया है ना। देखो केस 1 में ऐसा रिजल्ट मिल गया, थ्योरेटिकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट इन केस ऑफ केस 2, तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल है। तो केस 2 में जो रिजल्ट वी हैव गॉट, दैट वन इज एक्सेप्टेबल रिजल्ट। तो सिंपल सा टेक्निक हिंट यही है, जिसका मोलारिटी कम है उसका पूरा अमाउंट यूज करो,
और जिसका मोलरिटी ज्यादा है उसका एक्स वाई जो भी मानो अभी इक्वेशन पुट करो, सॉल्व करो, देन यू विल गेट द आंसर. तो नाउ लेट अस कम to another न्यूमेरिकल्स. तो लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस मोलरिटी इक्वेशन के ऊपर हम जाएंगे. कम टू द अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन गिवन question number 4. The question number 4 is 100 ml of 0.1 molar BaCl2 solution is mixed with 100 ml of 0.1 molar NaCl solution. Full stop. Calculate the molarity of chloride ion in the final solution. Calculate the molarity of chloride ion in the final solution. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है. अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है एज कंपेयर टू द अदर्स न्यूमेरिकल व्हिच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बट दिस न्यूमेरिकल इज somewhat different from others. तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस बार क्या बोला है, एक पर्टिकुलर आयन का मोलरिटी कैलकुलेशन करने के लिए बोला है. तो फर्स्ट लिखो V1 इक्वल टू 100 ml, M1 इक्वल टू मोलरिटी of Cl minus in BaCl2 solution. तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, C है 2 इंटू मोलरिटी ऑफ BaCl2, 2 इंटू 0.1, 0.2 मोलर. तो now come to the V2 equal to this also 100 ml. तो now M2 equal to molarity of Cl minus in NaCl solution. तो इक्वल टू, तो अभी हम लिखेंगे 1 इंटू मोलरिटी ऑफ NaCl, इक्वल टू 0.1 मोलर है. तो M1 V1 M2 V2 already we have got. So now Vr equal to V1 plus V2, 100 plus 100, 200 ml. तो Mr equal to molarity of Cl minus in the final solution. Molarity of Cl minus in final solution, which is equal to question mark. ये you have to find out. This thing you have to find out. Now come to the solution. Same formula apply करो अभी ion के लिए. तो then you will get Mr equal to M1 V1 plus M2 V2, V1 plus V2. तभी पुट करो, M1 हमें कितना मिला था 0.2, V1 100, M2 0.1 था, वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 200. तो इक्वल टू 0.1 प्लस 0.05, 0.15 मोलर. अगर किसी एक पर्टिकुलर आयन के लिए पूछा है तो देन दिस इज द इक्वेशन. तो यही है मोलरिटी के ऊपर यही न्यूमेरिकल है. तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, अनदर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी कैपिटल N. तो ऑल ऑफ यू नो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट. शॉर्टकट फॉर्म में हम लिखेंगे N इक्विवेलेंट, NEQ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये है नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन.
तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। यूनिट, यूनिट में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में कितना है। तो नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर में देखो ये वॉल्यूम टर्म्स है, तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलर नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के ऊपर देखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। सी हियर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स में पहले फॉर्मूला में आ जाओ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी में जो जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस मोलारिटी इक्वेशन में जहां जहां मोलर मास था उसी जगह में हम इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ई इंटू वॉल्यूम इन ml। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, फर्स्ट फॉर्मूला। तो यह लिखेंगे डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ई जो है ग्राम इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सोल्यूट। बी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये नॉर्मेलिटी का पहला इक्वेशन। तो नाउ कम टू द सेकंड फॉर्मूला, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। फॉर्मूला नंबर 2, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट मास। Another formula, strength meaning is gram per liter of solute by equivalent mass. The next third formula, formula number 3, normality equal to x into d into 10 divided by capital E. This is another formula where x जो है W by W % of solute, D term D जो है density of solution in ग्राम पर ml, और E जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो नेक्स्ट अनदर और एक फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी के ऊपर, दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। So what is the relation between normality and molarity? तो normality equal to molarity into n factor. So now m जो है this is molarity, this is n factor, और valency factor जो है n factor. So this is the formula for normality. तो dear students, next class हम discuss करेंगे लेसन। तो नेक्स्ट क्लास हम आएंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के ऊपर हम थोड़ा सा 2 सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट जो लास्ट टॉपिक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। ओके।